तुला माहिती आहे ना आपल्या क्लासमध्ये असं काही चालत नाही. धीरज नाव चेंज करून घ्या आज. ओके. हा. ओके. ठीक आहे. गुड. तर बाकीच्या नावाच येतोय माझा. अभिज्ञा, जय, मैत्रेया. ओके. ठीक आहे. ओके. गुड. सो आज तुम्हाला लिंक आलेली आहे 9th मॅथ्स 1 ची, बरोबर. पण आपण आज 9th सायन्स कंटिन्यू करणार आहोत. आपण आज सायन्सचंच लेक्चर कंटिन्यू करणार आहोत. ओके. तर आपला जो चॅप्टर आहे रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट, तो कम्प्लीट होऊन जाईल. ओके. सो let me just present the screen. I hope it is visible to you now. Is it? Yes. uh, so okay, very good, Dheeraj changed the name very quickly. Good. ठीक है. So see, in the last class we have seen what is divergence and convergence. Okay. So okay, first of all you just put your attendance, everyone. Dheeraj, Avigna, Jay has already put. Maitreya, you are remaining. And yes, that's it. Maitreya, just put your attendance. So divergence and convergence. ओके. सो डाइवर्जेंस में क्या होता है कि एक पॉइंट से जो रेज होते हैं वो बाहर की ओर जाते हैं, और कन्वर्जेंस में क्या होता है कि कई सारे रेज एक पॉइंट पे आके मिलते हैं. सो वी कॉल इट एज अ convergence. So I think I have explained about this. After that we have seen a concave mirror is called a focusing mirror. So this is important thing you must remember. Concave mirror is what? Focusing mirror. Focusing mirror means what? Let us suppose this is a concave mirror. Okay. And if the rays are coming like this, they are coming parallel to the principal axis. So concave mirror will focus the rays at a certain point, that is called as focus. बराबर. फोकस पॉइंट जो रहेगा, प्रिंसिपल फोकस जो रहेगा, वहां पे वो जो रेज है वो क्या होंगे? कन्वर्ज होंगे या फिर डाइवर्ज डाइवर्ज होंगे? बताइए. व्हाट विल हैपन? विल दे कन्वर्ज हियर और डाइवर्ज? सी, the ray comes here and gets back to here again like this. So what is happening here? Convergence or divergence at this point? इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस नहीं हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है. सी, कन्वर्जेंस. व्हाई कन्वर्जेंस? बिकॉज कन्वर्जन नहीं. सी, there is a difference between conversion and convergence. Okay. These two terms are not at all related to each other. Okay. They are completely different things. Conversion is different and convergence is the different thing. Okay. So they are converging here. They are meeting at this point. So we have seen, if rays are meeting at a certain point, then that is a convergence. And if rays are going away from one point, then that is divergence. Okay. That's it. ठीक है. So उसके बाद में a convex mirror is dispersing mirror. Dispersing mirror यानी कि क्या? कि अगर उसे एक पॉइंट सोर्स से अगर हम सप्लाई लाइट दे, तो व्हाट इट विल डू? इट विल spread the light. Okay. It will spread the light from a certain point. So that is called as a dispersing mirror. How dispersing mirror? See, for example, अभी अगर ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें क्या होता है? सी,
लाइट यहाँ पे आया, यहाँ पे आके वो कन्वर्ज हो गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके ये कन्वर्ज हो गया. ओके, वी हैव सीन दिस. आई होप यू आर able to relate this. Okay, so this is imaginary point. This is imaginary point. But if we see, the rays are getting out from here, and after refraction actually they are passing. So that means the rays are coming out of this certain point and they are visible to us in a parallel form. So there is a divergence here, and the convex mirror is said to be dispersing mirror. This is because, as shown in figure, parallel incident rays get dispersed after reflection in this mirror. The size of the images produced by these mirrors is always smaller than the size of the object. See, convex mirror की property देखो, size of the object, size of the object or the image, size of the image produced by these mirrors is always smaller than the size of the objects. Okay, so Maitreya is saying she is facing some, sorry, he is facing some problem with my voice. Is that the case with everyone? बाकी लोगों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? नहीं आ रही है? धीरज को भी मेरी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है. Okay, Jay is saying it's clear. Okay, Maitreya is also is saying it's perfect. Okay. Okay, good. So voice is clear, so that's fine. Now, how will you find out if a mirror is concave or convex? So the special mirror which is used for shaving is a concave mirror. So now see, जो मिरर शेविंग के लिए यूज किया जाता है उसे कॉनकेव मिरर कहते हैं, या फिर कॉनकेव मिरर को शेविंग के लिए यूज किया जाता है. When held close to the face, it gives vertical and larger image of the face. If the same mirror is taken farther away from the face, the image gets smaller and smaller. तो शेविंग के लिए कॉनकेव मिरर क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज प्रोड्यूस करता है वो लार्जर रहती है when it is held close to the face. मतलब फेस के अगर आप नजदीक पकड़ोगे उस मिरर को तो आपको आपकी जो व्हाट वी कैन से बियर्ड है या फिर चिन है उसका जो इमेज है दैट विल बी बिगर देन द ओरिजिनल साइज ऑफ आवर जॉ, एंड that's why we will be able to see the beard properly, okay, or the shape properly. Now, the mirrors used in cars and motorcycles are convex mirrors. In these mirrors, the image of a face is erect and smaller, and it remains erect but becomes smaller and smaller when the mirror is taken away from the face. As a result, we see the image of the surroundings also in the mirror. Thus, we can determine the nature of the mirror by studying the images produced by them. So, कौन सा मिरर हमें दिया गया है, या फिर if we have to guess whether it is a concave mirror or the convex mirror, so what we can do, we can just put the object close to him, close to the mirror, and away from the mirror, and depending upon the images formed, we can determine whether the mirror is concave mirror or convex mirror. Okay, so जो कार में या फिर मोटरसाइकिल्स के जो मिरर्स रहते हैं वो मिरर्स रहते हैं यूजुअली कॉन्वेक्स मिरर्स रहते हैं. सो उनमें क्या, उन मिरर को यूज करने का एडवांटेज ये होता है कि पीछे से जो व्हीकल आ रहा है सो दैट शुड बी विजिबल टू अस. सो मतलब जितना एरिया दिख सकता है, मैक्सिमम जितना एरिया दिख सकता है उतना एरिया हमें उस मिरर में देखना होता है. सो दैट्स व्हाई वी यूज द कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में जब वो ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा तो आपको उसकी इमेज बड़ी दिखाई देगी, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट दूर रहेगा देन ऑल्सो उसकी एक छोटी सी इमेज आपको दिखाई देगी, and it will cover the larger area as compared to the plane mirror and concave mirror. Okay, so that's why convex mirror is usually used in cars and motorcycles. Now, when the light rays coming from an object enter our eyes, we can see the object because while passing through the lenses in our eyes, the rays converge
and the image of the object forms on the retina of our eye. This image formed by light rays actually converging at a point is a real image. A real image can be obtained on a screen. Okay, so I don't know whether you have studied about the structure of our eye in your syllabus or not in the 7th or 8th standard, but I'm sure it is in your syllabus for 10th standard. Okay, तो आई का जो स्ट्रक्चर रहता है इसमें एक मतलब व्हाट वी कैन से एक लेंस रहती है इस तरह से. ओके, एंड यहाँ पे पीछे रेटिना रहता है. रेटिना यानी व्हाट वी कैन से पर्दा. सो उस जो लेंस है, लेंस पे रेज आते हैं एंड दे कन्वर्ज बिकॉज ऑफ द लेंस ऑन आवर रेटिना. सो एक पॉइंट साइज इमेज बनती है. दिस इमेज इज एक्चुअली द inverted image. Okay, that is not the what we can say erect image, it is inverted image, but our brain can decipher the image and we see the object as it is. Okay, so this is how the eye structure works. You will learn about this in the next standard. Okay, so what the point here you should remember is the rays are converged at our रेटिना. मतलब जो हमारा रेटिना है उस पे वो जो सारे रेज बाहर से आ रहे हैं वो कन्वर्ज होते हैं एंड वी गेट अ रियल इमेज. सो अ रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन. तो स्क्रीन पे भी हमें एक इमेज मिल सकती है इफ वी आर यूजिंग मिरर्स. ओके, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड लेंस. ऑल द प्रिंसिपल्स आर सेम. अगर आपको ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब चीजें अच्छे से आती है, ये सब चीजें अच्छे से आप समझ पाते हो, तो एवरीथिंग इज सेम इन लेंसेस आल्सो. ओके, सो लेंस का भी एक चैप्टर आपको 10th स्टैंडर्ड में है. तो ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको 10th स्टैंडर्ड में वो चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी. ओके, now the image produced by plane mirror is virtual image. This image is produced at a point from which the reflected rays appear to diverge. This image cannot be obtained on a screen as the rays do not actually meet there. Okay, so हमें अगर इमेज फॉर्म करनी है किसी पिक्चर सॉरी किसी ऑब्जेक्ट की, तो हम स्क्रीन पे मैं बात कर रहा हूं इमेज फॉर्म करने की ऑन द स्क्रीन. सो इफ वी वांट टू फॉर्म अ इमेज ऑन द स्क्रीन, सो वी कैन नॉट डू इट विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज टू फॉर्म अ इमेज और टू ऑब्टेन अ इमेज इट इज नेसेसरी टू द रेज शुड कन्वर्ज. तो रेज कैसे होना चाहिए? कन्वर्ज होना चाहिए. तो कन्वर्जेंस प्लेन मिरर में नहीं होता है. जिस एंगल से आया है, लेट अस सपोज यहां से एक रे आया तो इसी रास्ते से वो वापस चला जाएगा. इफ इट कम्स इन दिस एंगल, सो इट विल गो लाइक दिस. ओके, सो इट विल नॉट कन्वर्ज एनीवेयर. मतलब कहीं पे भी ये जो रेज है वो कन्वर्ज नहीं होंगे. एंड इफ ऑल द रेज आर पैरेलल, सो दे विल बी रिफ्लेक्टेड इन अ पैरेलल डायरेक्शन ओनली. जिस रास्ते से आएंगे उसी रास्ते से वो रेज वापस जाएंगे. ओके, सो वी कैन नॉट फॉर्म अ इमेज विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर. तो अभी आप लोग बोलोगे कि प्लेन मिरर की मदद से अगर हम इमेज फॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो रोज हम जो मेकअप करते हैं मिरर में देख के, तो उसमें तो हमें हमारी इमेज दिखाई देती है. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्चुअल इमेज, वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल इमेज. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज. ओके, सो द इमेज वी आर सीइंग दैट इज अ वर्चुअल इमेज. ओके, जो इमेज हम देख रहे हैं ना वो मिरर में, दैट इज वर्चुअल इमेज. दैट इज मतलब कि there is no such existence of that image. okay, so अभी अगर रियल इमेज की बात करें, सो रियल इमेज तभी फॉर्म होगी जब रेज कन्वर्ज होंगे लाइक दिस एट अ सर्टेन पॉइंट. ओके, नाउ व्हेन लाइट रेज कलेक्ट एट अ पॉइंट after reflection from the spherical mirror, they said to converge there. When we want to bring light rays together at a point, a converging light beam is used. Doctors use such beam to converge light on a tooth, ear, nose, etc. Equipments using solar energy also use converging light. So converging light का यूज डॉक्टर्स वगैरह भी करते हैं. अगर मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करके अगर देखना है, तो वहां पे लाइट बीम्स उनके द्वारा
मतलब जो बैटरी होती है ना डॉक्टर की, अगर आपने देखी होगी, तो दैट इज लिटिल डिफरेंट देन द यूजुअल बैटरीज। उसमें मतलब कि ऐसा जो फोकस होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोकस एंड दैट इज ऑन अ सर्टन पॉइंट ओनली। मतलब ऐसा फैलता नहीं है जो हमारी नॉर्मल बैटरीज रहती है। उनका जो फोकस रहता है दैट इज फेंट, बट इट इज लाइक इन अ स्प्रेड मैनर, ओके। लेकिन जो डॉक्टर की जो बैटरीज रहती है, दे आर फोकस्ड एंड ऑल्सो द सोलर एनर्जी इक्विपमेंट्स, मतलब कि सोलर पैनल्स वगैरह जो रहेंगे, इनमें की जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। सो एज वी नो कि अगर विद द हेल्प ऑफ वन लेंस अगर हम सोलर रेज को एट एक पॉइंट पे अगर हम फोकस करते हैं, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन बर्न द पेपर। ये एक्सपेरिमेंट मोस्टली आप लोगों ने किया रहेगा। सो इसमें क्या होता है कि सारे रेज को इकट्ठा किया जाता है। सो इकट्ठा करने से क्या होता है, उसकी एनर्जी बढ़ती है। सो दैट्स व्हाई the convergence, this is how the convergence is used. When light rays starting from a point spread out after reflection by the spherical mirror, light is said to have diverged. When we want light rays to spread from a source, a divergent beam is used, एज फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट लैम्प्स। तो स्ट्रीट लैम्प्स में भी अगर आप देखोगे तो लाइट जो है वो ऐसे फैल के आती है, ओके। सो कॉन्वेक्स मिरर का स्ट्रक्चर फिर से एक बार देख लीजिए। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आता है, सो इट विल pass through focus, but actually it will be reflected like this, okay। The original path should be this, but is nothing। यहाँ पे जो dotted lines बनाई है ना, that is nothing, that is the portion behind mirror, okay। So there is no actual existence of this portion, but for our understanding, for the sake of focal point or the principal focus, this structure is drawn here, okay। otherwise is nothing। so रे यहां से आएगा, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये आया, ये रिफ्लेक्ट हुआ। सो सिमिलरली रेज इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि दे आर कमिंग फ्रॉम अ सर्टन पॉइंट इनसाइड द मिरर। सो दिस इज द डाइवर्जेंस, ओके। सो इस पॉइंट से रेज बाहर आ रहे हैं, ऐसा सिर्फ हमें लगेगा कि एक्चुअल में वो आ नहीं रहे हैं, दे आर जस्ट reflecting from the surface of the spherical mirror, okay। So this is how the reflection works in concave mirror and convex mirror, okay। अगर आपका एक कंसेप्ट समझ में अच्छे से आ गया है, तो आपको बाकी सारे जो कंसेप्ट है या फिर क्वेश्चन आंसर्स है वो समझने में भी आसानी होगी। नाउ यूज ऑफ कॉन्केव मिरर्स। सो बार्बर शॉप में, डेंटल हॉस्पिटल में, तो यूजुअली कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ पे किया जाता है, अगर हम जनरल में बोलना चाहे तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि हम मिरर को नजदीक ले जा सकते हैं एंड वी वांट टू सी अ बिगर इमेज। सो बार्बर शॉप में या फिर डेंटल हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा, अगर कभी आप डेंटल हॉस्पिटल में गए हैं, तो एक स्पून लाइक मिरर रहता है उनके पास में, बराबर। डॉक्टर हमारे माउथ में उस स्पून लाइक इक्विपमेंट को रखते हैं और चेक करते हैं कि मतलब वो दांत चेक करते हैं। सो दैट इज नथिंग बट द मिरर, वो मिरर में देखते हैं। सो दैट इज कॉनकेव मिरर यूजुअली, ओके। सो इससे क्या होता है कि हमारा जो दांत उस मिरर में दिख रहा है, that appears bigger than its actual size, okay। So that doctor is able to see the details of the tooth problem, we can say। So if the image, if the object is placed between pole and focus of the mirror, an erect virtual and magnified image is obtained। Now why it is virtual again, can anyone tell why it is virtual again? Okay, Jay has gone to the dentist and he has seen the mirror, okay। So can anyone tell, in the first example we are saying that the image is virtual। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अच्छा, मैं आपको फिर से एक क्लू देता हूं, बताइए कि इमेज रियल होने के लिए या फिर रियल इमेज फॉर्म होने के लिए क्या होना जरूरी है? रेज का कन्वर्ज होना जरूरी है, बराबर। एम आई राइट? रेज का कन्वर्ज होना जरूरी है, एक पॉइंट पे फोकस होना जरूरी है, ओके। यस। सो
रेज फोकस कहां पे होते हैं? रेज फोकस कहां पे होते हैं? At a focal point, at a focus, principal focus, isn't it? Principal focus. तो हमने क्या किया है यहाँ पे, if the object is placed between the pole and focus, so मान लीजिए कि ये कॉन्केव मिरर है, ये इसका फोकस है और हमने ऑब्जेक्ट रख दिया इधर, तो रेज तो फोकस यहाँ पे हो रहे, तो यहाँ पे इमेज कौन सी फॉर्म होगी? वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी ना, रियल इमेज तो यहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए, समझ रहे हो? सो दैट्स व्हाई द इमेज इज वर्चुअल. ओके, नाउ torch lamp of vehicles, torch and lamp headlamps of vehicle, the source of light is kept at the focus of the mirror, thus a parallel beam of light is obtained. So वो जो सोर्स ऑफ लाइट रहता है इनसाइड दोज हेडलाइट्स, दैट इज एट द सेंटर, सॉरी दैट इज एट द फोकस. सो फोकस में अगर सी यहाँ पे अगर सोर्स है, यहाँ से लाइट जा रही है, ओके, एंड इफ दिस इज अ मिरर दैट इज कॉनकेव मिरर, तो फोकस में से जो लाइट जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल. सो इसकी वजह से हमें जो लाइट दिखती है, टॉर्च की लाइट या फिर हेडलैम्प्स की लाइट, दैट इज पैरेलल या फिर ऐसी स्ट्रेट लाइन में दिखती है, हमें फैली हुई नहीं दिखती. ओके, इफ यू हैव ऑब्जर्व, तो जो हेडलाइट की लैंप्स रहते हैं वो जो लाइट देते हैं दे गिव इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, सो दैट बिकॉज ऑफ द mirror, that is concave mirror used in the headlights. Now floodlights, the source of light is placed a little beyond the center of the curvature of the mirror, this gives the bright beam of light. अभी सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे जो सोर्स ऑफ लाइट है वो प्लेस किया जाता है, तो इससे क्या होता है, देखो फ्लड लाइट्स का इस्तेमाल जो है वो बड़े एरिया को कवर करने के लिए होता है. ओके, दे आर यूज्ड टू कवर द बिग एरिया. सो लेट अस सपोज इफ दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज सी, दिस इज प्रिंसिपल फोकस दैट इज एफ, एंड दिस इज अ मिरर. ओके, सो अगर यहाँ पे सोर्स है तो ये जो रे यहाँ पे जाएगा, ओके सॉरी थोड़ा सा मिरर हमारा छोटा पड़ गया, मैं बढ़ा देता हूँ इसको. सो ये जो रे यहाँ पे गया, so this ray will be reflected through this path only, and it will pass through the center of curvature again like this. so देखिए ये जो लाइट हमें मिलेगी ना, ये लाइट विल बी लाइक स्प्रेड, समझ रहे हो? सो इस तरह से, मतलब जो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाता है वही रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, सो इससे क्या होता है, एक हमें फैली हुई लाइट मिलती है. ठीक है, सो दिस इज व्हाई द फ्लड लाइट्स यूजेस कॉनकेव मिरर विथ द सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. नाउ वेरियस इक्विपमेंट्स यूजिंग सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट्स जो है मैंने आपको बताया कि वो क्यों कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं, बिकॉज दे कन्वर्ज द sun rays and they get more energy. Now use of convex mirrors, mirrors on the side of cars and convex mirrors. Big convex mirrors are fitted at the gate and in the square. तो convex mirror का यूज भी हम डिस्कस कर चुके हैं. Now this is very important, what we can say convention or the Cartesian sign convention. इसका यूज हमें होगा प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में. ओके, सो इसको अच्छे से समझ लीजिए, तब जाके आप प्रॉब्लम्स में कंफ्यूज नहीं होंगे. प्रॉब्लम में कंफ्यूजन कब आती है मैं आपको बताता हूं. पहले ही प्रॉब्लम्स में आपको कोई वैल्यू दी रहती है पॉजिटिव में, लाइक इफ दिल से द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 10 सेंटीमीटर. ओके, the distance of object from the mirror is 10 centimeter, but while putting it in formula you have to take it as a -10. okay, so ये माइनस क्यों लिया जाता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है वहां पे. so ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इस फिगर को अगर आप अच्छे से समझते हो तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा while solving the problems. Okay, now according to Cartesian sign convention, the pole of the mirror is taken as the origin, the principal axis is taken as the x-axis, and the frame of reference, the sign convention are as follows. So जो हमने कार्टेशियन कन्वेंशन या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है हम
आई थिंक 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं। ओके, सो इसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और एक ओरिजिन होता है, या फिर एक जो व्हाट वी कैन से 0 0 पॉइंट रहता है ना, दैट इज ओरिजिन एक होता है। तो जब हम मिरर्स के या फिर लेंसेस के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सेम कन्वेंशन रहेगा। ओके, सो जो पोल है हमारे मिरर का, दैट इज प्लेस्ड एट द origin of that Cartesian coordinate. Okay, so let me tell, please let me know that you people are getting my voice clearly, because few of you are leaving the class and joining again. Okay, so is it clear? Okay, good, it's clear. Okay, good. So see, सेंटर या फिर जो ओरिजिन है उस पे क्या रहेगा, मिरर का पोल रहेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो ऑब्जेक्ट जो रखा जाएगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, समझ रहे हो? So this is a particularly concave mirror, but same applies for the convex mirror also. Okay, तो जो concepts मैं concave mirror के लिए बता रहा हूँ, वही concepts concave mirror के लिए, sorry, convex mirror के लिए भी apply होते हैं। Just one change is there, and that change I will let you know. Okay, so अभी जो मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो दोनों मिरर के लिए ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है। ओके, तो दिस इज फर्स्ट थिंग। नाउ व्हाट इज सेकंड थिंग? all the distances measured towards the right of the pole are taken to be positive, while those measured towards the left are taken to be negative. So ये पोल है हमारा, so पोल के राइट में जो भी डिस्टेंसेस रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। ओके, ये तो हमें मतलब यूजुअली है ना, राइट साइड में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज होती है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज होती है, ऊपर के साइड में वाई की पॉजिटिव वैल्यूज होती है और नीचे के साइड में वाई की नेगेटिव वाली वैल्यूज होती है। तो distances, all distances to the right of pole, all distances to the right of pole are taken positive, and those to the left of pole are taken as negative. Okay, so लेफ्ट साइड में कैसे लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। तो मैंने जैसे कहा था आपको कि ऑब्जेक्ट रखा गया है यहाँ पे, लेट अस सपोज दिस, और इसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल में ये 10 सेंटीमीटर नहीं कहेंगे हम इसे, what we will call it as a minus 10 सेंटीमीटर। why? because it is on left side, correct? मैंने बोला ना, लेफ्ट साइड में अगर हम कुछ चीज रखते हैं तो उसे क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। एंड जैसे हमने बोला कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हमें नेगेटिव लेफ्ट साइड में ही रखना है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस आएगा वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। okay, whether it is given in the example or not, we always have to take the distance as a negative. Now distance measured vertically upward from the principal axis are taken to be positive, distances measured vertically downward from the principal axis are taken to be negative. The focal length of concave mirror is negative while that of convex mirror is positive. तो ये जो ऊपर के डिस्टेंसेस रहेंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, और जो नीचे के डिस्टेंसेस रहेंगे या फिर इस साइड में भी वो नेगेटिव रहेंगे। ओके, सो जो मैंने आपको बोला था ना, एक चेंज है, सिर्फ एक ही चेंज है। तो चेंज क्या है? प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकल लेंथ में, फोकल लेंथ इज व्हाट, द डिस्टेंस ऑफ द पोल, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। सो लेट अस सपोज इफ दिस इज अ प्रिंसिपल फोकस, so this is the distance, that is focal length. so this focal length, अभी आप हमें पता है कि कॉन्केव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस रहता है दैट इज टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ये हमने पहले भी सीखा है एंड आई होप यू रिमेंबर दिस ऑल्सो। ओके, तो इसी वजह से अभी लेफ्ट में है तो डिस्टेंस कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो ये जो फोकल लेंथ है ये भी नेगेटिव रहेगी। एंड दैट फॉर कॉन्वेक्स मिरर, अभी कॉन्वेक्स मिरर की हम बात कर रहे हैं, लेट मी ड्रॉ द कॉन्वेक्स मिरर हियर। तो इसका प्रिंसिपल फोकस कहीं पे यही पे यहाँ पे रहेगा, तो ये जो प्रिंसिपल फोकस है ये पॉजिटिव रहेगा। ओके, या फिर ये जो फोकल लेंथ हम जिसे कहते हैं, दैट फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। ओके, सो दिस इज द ओनली डिफरेंस between the sign conventions in concave mirror and convex mirror. Okay,
सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल देन वी कैन सी द मिरर फॉर्मूला। ओके, सो मिरर फॉर्मूला में देखिए हमें एक सिंपल फॉर्मूला दिया है, 1/v plus 1/u is equals to 1/f, where u is the distance of object, okay, from the pole, remember always from the pole, while the v is the distance of image from the pole। तो v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड f क्या है, f is the focal length। focal length is what, focal length is the distance of principal focus from the pole of that mirror। okay, so this formula is like this, and you have to remember the conventions, that is v is what, right everyone, v is the distance of image from the pole, everyone write it, v is the distance of the image from the pole, v is the distance of the image from the pole। write it in your notebook or in the chat box quickly, until and unless you write it you don't remember। if you are not writing then I am not moving ahead। good Maitreya, now write u is the distance of object from the pole। ऑब्जेक्ट, अभी यहाँ पे एक ही वर्ड चेंज करना है, क्या करना है, ऑब्जेक्ट, एंड यू जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, वी जो है वो इमेज का डिस्टेंस है, एंड एफ इज व्हाट, एफ इज द फोकल लेंथ। वेरी गुड मैत्रेया, गुड, ठीक है। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर राइटिंग, ओके, so this formula is valid for all spherical mirrors for all positions of object under all circumstances। okay, so this formula is valid for all spherical mirrors, this formula is not valid for what, प्लेन मिरर्स। क्यों नहीं है, क्योंकि प्लेन मिरर में कोई फोकल पॉइंट नहीं रहता है, बराबर, तो एफ ही नहीं रहेगा तो फॉर्मूला का क्या करेंगे, बराबर। नो, मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्पेरिकल मिरर्स, the magnification due to spherical mirrors is given by the ratio of height of image to the height of object। this tells us how large the image is as compared to the object। so magnification यानी क्या, कि हमने 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है, तो हमें मिरर ने 20 सेंटीमीटर की इमेज दी है, तो इससे क्या हुआ कि मिरर ने क्या कर दिया, मैग्निफाइड कर दिया उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बाय द फैक्टर ऑफ 2, मतलब कि दुगने हाइट की हमें इमेज दिख रही है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज व्हाट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज h2 डिवाइडेड बाय h1, which can be also calculated like this, m is equals to minus v by u। okay, तो v is what again, v is the distance of the image from the mirror, sorry, pole, and u is the distance of the object from the pole। so these two formulas are there for magnification। तो दोनों में से किसी भी फॉर्मूला को आपको यूज करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डाटा एंड नॉट पर एज योर चॉइस, मतलब आपके हिसाब से नहीं आपको फॉर्मूला यूज करना है, आपको उसी हिसाब से फॉर्मूला यूज करना है जिस हिसाब से आपको डेटा दिया रहेगा इन द प्रॉब्लम। ओके, so as the object is always kept above the principal axis, its height is always taken to be positive। तो देखो, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो हमने क्या बोला था कि प्रिंसिपल एक्सिस के, सी इफ दिस इज सपोज टू बी अ प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट हमेशा यहीं पे रखा जाएगा ना, बराबर, ऑब्जेक्ट नीचे थोड़ी ना रख सकते हैं हम, नीचे रखेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो दिखाई नहीं देगा। सो यहां से ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम,
पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे या फिर पॉजिटिव हाइट लेंगे उस ऑब्जेक्ट की, समझ रहे हो? या फिर अगर ऑब्जेक्ट रखा जाता है इस तरह से, लाइक दिस, इन दिस मिडल पोजीशन, तो दिस प्लस दिस करना पड़ेगा। ओके, एक्चुअल में यहां से नीचे का माइनस और यहां से ऊपर का पॉजिटिव। आई होप आप समझ गए हो कि हमें ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है या फिर हाइट है वो किस तरह से लेनी है, उसका साइन क्या लेना है। नाउ for virtual images the height is positive value, for real images it is negative. For virtual images height is positive, while for real images it is negative. Remember this. As the object is kept on the left of mirror, its distance u is always negative. The okay, and as the object is kept on the left of the mirror, the distance u is always negative. We all know that. Now let us see the one solved example. Rajashri wants to get an inverted image of height 5 centimeter of an object kept at a distance of 30 centimeter from the from a concave mirror. The focal length of the mirror is 10 centimeter. So मैं यहाँ पे underline कर देता हूँ. At what distance from the mirror should she place screen? What will be the type of image and what is the height of the object? So first of all, focal length is given, that is 10 centimeter, but as it is concave mirror, remember this, as it is concave mirror, we have taken the focal length as a negative minus 10 centimeter. Okay, now ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें हमेशा कैसे लेना है, नेगेटिव लेना है। यहाँ पे भले ही 30 दिया हो लेकिन हम -30 लेंगे। height of image h2 is 5 centimeter. Now Rajeshri wants to get inverted image of height 5 centimeter. Inverted image यानी कि क्या, उल्टी इमेज नीचे के साइड में, बराबर, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इन्वर्टेड इमेज बोल रहे हैं ना। सो उसकी हमें हाइट कितनी लेनी है, 5 सेंटीमीटर, लेकिन नेगेटिव लेनी है। ओके, नाउ what is the image distance, that is v, and what is height of the object, that is h. So पहले तो हमें f दिया है, u दिया है, हम v निकाल सकते हैं। ओके, सी, v निकालना है, u तो दिया है, f भी दिया है, so put all the values and you get the v. Okay, once you get the v, you need to find out the h1. So we have two formulas, that is m is equals to h2 by h1 is equals to minus v by u. Now you have v, you have u, you have h1. What you need, no sorry, you don't have h1, you have h2. So h2 को यहां पे भेज दो, so uh by v is equals to h1 बन जाएगा। so h1 का फॉर्मूला हमने इस ऊपर के फॉर्मूला से डिराइव कर लिया। नाउ u की हमारे पास वैल्यू है, h2 की वैल्यू है, v की भी वैल्यू हमारे पास है, तो what we can do, we can simply do the calculations and we'll get the h1. Now h1 is what, h1 is height of object. Okay, h1 is height of object, and as you can see it is positive. Okay, the height of object is 10 centimeter, thus the image will be real and diminished. Okay, now one more question is there, why the image is diminished and why it is real? Can anyone tell? Yes, no, please put, if you don't know the answer, then put yes. If you don't, put no. Simply, we'll move forward. Do you know the answer? Why the image formed will be real and diminished? No, Dheeraj don't know the answer. That's fine. See, आपको हमेशा से, okay, you have to always keep thinking, you have to always keep looking for the clues. Okay, so mathematics is subject like that. अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में, आपको 12th स्टैंडर्ड तक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन आफ्टर 12th, इफ यू आर गोइंग फॉर अ डिग्री और इफ यू आर गोइंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स,
सो उसमें कभी भी आपको क्वेश्चन स्ट्रेट नहीं पूछा जाएगा, दैट विल बी मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्ड नहीं, मैं हार्ड नहीं बोल रहा, ओके, घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हमारे पास अभी से ये व्हाट वी कैन से आर्ट है कि वी कैन ऑब्जर्व द थिंग्स आउटसाइड द बॉक्स, मतलब जो दिया है सिर्फ उतना ही नहीं, थोड़ा सा उससे अलग भी अगर हम सोच पाते हैं, सो विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज काइंड ऑफ एग्जाम्स, ओके। सो यहाँ पे देखो आप, फोकल लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। नाउ 10, अभी H1 क्या है, H1 is the height of the image, बराबर, yes or no? Yes. Now V is what? V is the distance of the image, distance of the image from the mirror, बराबर, correct? Now as you can see, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर एंड इमेज फॉर्म हो रही है फोकल लेंथ के बाहर या फिर इस साइड में, बराबर। तो व्हाट वी कैन से द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। अगर इमेज यहां पे कहीं पे फॉर्म हो रही होती बिफोर द फोकल लेंथ या फिर बिफोर द प्रिंसिपल फोकस के राइट साइड में अगर इमेज फॉर्म हो रही है, सो that would have been virtual, but as it is forming on the left side, so it is real, okay, it is real. So this is the point that you should have got, ठीक है। now let's, okay, the image in front of mirror which can be obtained on a screen is called a real image. For any position of the object, a convex mirror always produces, see, a convex mirror always produces an erect diminished image which is smaller than the object and is situated behind the mirror. The image which is behind the mirror and thus cannot be obtained on the screen is called the virtual image, okay। now the magnification of such image is less than 1. Now that is it. I don't think this is going to be asked in your exam. So we'll take few questions, not all of them because we don't have much time. Okay. So इसके questions के answers आपको आसानी से मिल जाएंगे. Now what sign conventions are used for reflection from a spherical mirror? जैसे कि हमने देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस रहते हैं जिसमें कि हम above the principal axis we take distances as a positive, below the principal axis we take distances as a negative. I'm talking about principal axis, the horizontal line, okay। now the vertical line के लेफ्ट साइड में रहेंगे नेगेटिव डिस्टेंसेस, राइट साइड में रहेंगे पॉजिटिव डिस्टेंसेस। the mirror is always placed such that its pole is at origin, whether it is a concave mirror or convex mirror, okay। so these are the sign conventions. Now after that, which of the following, which type of mirrors are used in the following? Now periscope, has anyone heard about this periscope? पेरिस्कोप क्या होता है, किसी ने सुना है इससे पहले? Okay, Maitreya know what is periscope. What about others? Okay, yes, it is in submarine. Good. So धीरज ने नहीं सुना है. It is kind of what we can say बाइनाकुलर या फिर दूरबीन जैसे हम कहते हैं ना, उसी तरीके का होता है। लेकिन इसका एक एडवांटेज क्या है कि मान लीजिए इफ योर आई इज लाइक दिस, ओके, या इस पोजीशन पे तुम्हारी आई है और इस पोजीशन पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ओके, इस पोजीशन पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक दीवार है, व्हाट वी कैन से अ वॉल इज देयर। सो आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं देख पाएंगे। सो पेरिस्कोप इज लाइक दिस, ओके, मतलब कि इस तरह की दूरबीन रहेगी। आप यहां से देखोगे और यहां से एक व्हाट वी कैन से आउटलेट होता है जिससे कि रेज आते हैं अंदर, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कम टू आवर आईज, ओके। सो इस तरह मतलब पेरिस्कोप का यूज कहां पे किया जाता है? व्हाट वी कैन से मिलिट्री ऑपरेशंस में किया जाता है। मिलिट्री ऑपरेशंस में जो सोल्जर्स रहते हैं दे आर हिडन बिहाइंड द वॉल एंड दे कैन
see over the wall. Okay, if the wall is there like this, okay, so they can use this periscope. यहाँ पे पेरिस्कोप का मतलब वो इनपुट रहेगा और यहाँ से वो ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय हाइडिंग देमसेल्व्स. अगेन इन सबमरीन्स यानी कि सबमरीन मोस्टली they are below water level. Okay, तो ये let us suppose this is a submarine. Okay, I'm not good at drawing, but अगर हमें देखना है बाहर वाटर के बाहर कि सब कुछ क्लियर है या फिर नहीं, so we can just put the periscope outside the water and see, so that we will not be, or the chances of being detected या फिर हम पकड़े जाने के चांसेस कम रहते हैं. So it can be used. So periscope is like this. So periscope में मुझे बताइए कौन सा मिरर यूज होता है. Question is this actually. Which mirror is used in periscope? Plane mirror or spherical mirror, convex mirror, concave mirror, which is? I'm drawing the periscope. Plane mirror, correct. See, periscope is like this. तो periscope में एक mirror यहाँ पे रहता है. Okay, let me just draw the mirror with different color. This is one mirror and this is second mirror. So no, plane mirror is there. Plane mirror रहेगा. क्यों? क्योंकि light आएगी in straight path. It will get reflected like this and it will reach to us. Okay, so this is a periscope and plane mirror is used inside periscope. Floodlights में कौन सा mirror use होता है? Floodlights, just we have seen. Which mirror is used in floodlights? Anyone remembers? Concave mirror use होता है. Okay, which mirror is used? Concave mirror is used. Shaving mirror भी concave ही रहता है. कलाइडोस्कोप में प्लेन मिरर रहता है. वेरी गुड. स्ट्रीट लाइट्स में कॉन्वेक्स मिरर रहता है. स्ट्रीट लाइट्स में कॉन्वेक्स मिरर रहता है. हेडलैम्प्स ऑफ कार, अगेन कॉन्केव मिरर इज देयर. ठीक है. नाउ आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए. सो इसमें मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए. बिफोर दैट विल जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन. सो 3 मिरर्स आर क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल स्पेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग pole, center of the curvature, radius of the curvature, principal axis will be common to them and which will not be common. तो एक स्पेयर है हमारे पास में और उस स्पेयर की मदद से वी आर फॉर्मिंग 3 मिरर्स. सो इन 3 मिरर में कौन सी चीजें कॉमन रहेगी, कौन सी चीजें कॉमन नहीं रहेगी. सो योर ऑप्शंस आर दिस. पोल कॉमन रहेगा क्या, बताइए. इन तीनों मिरर में पोल कॉमन रह सकता है क्या? नो, पोल कैन नॉट बी कॉमन बिकॉज इसका पोल कहीं पे यहीं पे होगा, इसका पोल यहां पे होगा और इसका पोल यहां पे होगा. करेक्ट. नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी कॉमन और नॉट? yes or no? yes, it will be because the distance of center will be equal for both. Radius of curvature will be common. Radius of curvature will be again common, no? Yes. Principal axis not necessary. Principal axis common नहीं रहेगा. Principal axis different रह सकता है. Okay, depending upon the individual mirror. Now जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम में, आपको मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ. An object of height 7 centimeter. Height of object क्या रहेगा ये? U, V, F, H1, H2. Object of height or height of object H1. Very good. So it is H1 given here. Is kept at a distance of 25 centimeter. 25 centimeter is U. Okay. 7 रहेगा पॉजिटिव, 25 सेंटीमीटर रहेगा नेगेटिव. यहाँ पे इट इज U ना. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज U. Focal length of
the mirror is 15 centimeter, तो f is 15, but it is positive or negative? Positive or negative? F is positive or negative here? It is negative for concave mirror. Focal length is negative for concave mirror, and focal length is positive for convex mirror. Okay, so 15 को भी आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा. At what distance from the mirror should the screen be kept so clear image, get a clear image? What will be the size and the nature of the image? तो आपको क्या दिया है? U दिया है, H1 दिया है, F दिया है, V निकालना है और H2 निकालना है. That's it. Okay, V निकालना है और H2 निकालना है जो कि यहाँ पे इन्होंने निकाल दिया है. ना अभी कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, फोकल लेंथ दी है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव रहेगी. The image of an object kept in front of mirror is half the height of the object. तो यहाँ पे एक what we can say linear equation दिया है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसकी हाइट हाफ ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज kept in front of half the height of the object. तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली उसकी हाइट क्या है एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. सो यू हैव टू फाइंड आउट द value of V. Is it value of U? I think object of the distance of the object, that is U. Now in the last example, what is given and what is asked? A 10 centimeter long stick is kept in front of concave mirror following having focal length of 10 centimeter. 10 centimeter negative रहेगा. Such a way that the end of the stick closest to the pole is at distance of 20 centimeter. What will be the length of image? तो एक्चुअल में distance of object from the mirror will be 20 centimeter and that is minus 20 centimeter. So ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो ये u रहेगा, f तो दिया है, v निकालना है. ओके, एंड ये क्या दिया है? h1 दिया है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है. तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज? सो आपको h2 निकालना है. पहले v निकालेंगे, बाद में h2 निकालेंगे. ओके, v निकालना है, बाद में h2 निकालना है. सो दैट इज द actual question. So I think it's 7:51 already. Okay, and with this our chapter has ended. Okay, and in the next class we will start the study of sound chapter. So that's it for today's class. Thank you for joining and bye bye everyone. Now you can leave the class. Okay, bye bye. Thank you. Bye bye.